अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फिर एक बार आपका इस्तकबाल है ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। मिलिया जूनियर कॉलेज से मैं डॉक्टर मोहसिन आज उसी चैप्टर का अगला आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल नंबर 8.4 है और पिछले 2 दिन में हमने आर्टिकल 8.4 ए और बी इस पर हमने एक्सप्लेनेशन किया था, सीखा था। आज हम 8.4 सी पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखिए बच्चों, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूं। यह है बरखी बार के निज़ाम की वजह से पैदा बरखी ख्वा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बरखी बार चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस या बरखी निज़ाम, बरखी बार के निज़ाम यानी सिस्टम की वजह से पैदा बरखी ख्वा। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं इससे पहले हमने ये बरखी ख्वा के लिए मसावात हासिल किए हैं, लेकिन जो फर्स्ट डे था आर्टिकल नंबर ए, इसमें हमने पढ़ा था नुक्ती बरखी बार की वजह से पैदा बरखी ख्वा के लिए मसावात। उसके नेक्स्ट डे हमने देखा 18th को कि किसी बरखी दो खुतबी की वजह से किसी नुक्ते पर पैदा बरखी ख्वा के लिए मसावात। आज हम पढ़ रहे हैं बरखी बार के निज़ाम की वजह से पैदा बरखी ख्वा के लिए मसावात। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। नाउ यू कैन कंसिडर हियर फर्स्ट, पहले मैं अंग्रेजी में समझाता हूं फिर उसको उर्दू में आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। लेट अस कंसिडर द सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 dot Qn. Let us consider these are the system of charges which are situated at a distance r1 from a point P. Here is the point P. So the charge Q1 is situated at a distance r1 from P. The charge Q2 is suppose here, which is situated at a distance r2 from P. The next one Q3 is situated at a distance suppose r3 from this point P. Similarly Q4, Q5, Q6 dot Qn. These are the different charges which are situated at a distance r1, r2, r3, r4 dot rn respectively. Then as per our previous knowledge, the potential at any point due to the point charge, we know the expression for that. What is that? It is given by V1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 upon R1. What is this? Dear students,
This is the potential at point P due to the point charge Q1. Similarly, the potential due to this charge Q2 will be V2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q2 upon R2, isn't it? Then similarly, the potential at point P due to the point charge Q3, which is situated at a distance R3, is given by V3 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q3 upon R3. Now you have understood that if other charges are there like this Q4, Q5, Q6, Q7, Qn, number of charges are there in the system, then similarly their potential will be, suppose Vn is the potential due to the nth charge Qn, and situated at a distance, suppose Rn, then from this the potential at P due to the nth charge Qn, which is situated at a distance R1, will be given by Vn is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Qn upon Rn. So in this way we have learned, this was in the first lecture we have learned what is this potential, how to find the expression for potential, etc. Now suppose if we apply the principle of superposition of charges here, then the potential P V at P due to the system of charges is nothing but the algebraic sum of the potentials due to the individual charges. If we want to find the algebraic sum, if we want to apply the principle of superposition here, then the algebraic sum of the charges means you can say that 1 by 4 pi epsilon naught is the common here, isn't it? We can say if we are interested to find the potential at point P, applying the principle of superposition, then potential V will be equal to V1 plus V2 plus V3 plus Vn. It means that the potential in the system of charges, the potential at a point P will be the algebraic sum of the potentials like this V1 plus V2 plus V3 Vn. So let us say take the algebraic sum by taking 1 by 4 pi epsilon naught constant, which is common in all. So let us take common, and this will become summation I is equal to 1 to n first let us put these equations here. V will be equal to, common is 1 by 4 pi epsilon naught, no doubt here, and let us take here in bracket V1 upon R1 plus V2 upon R2 plus V3 upon R3 plus Vn upon Rn. So this is after applying the principle of superposition. So similarly, by taking the algebraic sum, we can take 1 by 4 pi epsilon naught into summation I is equal to 1 to n, this Qi upon Ri, Qi upon Ri. Now the value of I is from 1 to n, I is equal to 1, 2, 3 n. Therefore, and similarly here also, so it will become once Q1 upon R1 like this, Q2 upon R2 like this, Q3 upon R3. Similarly, if we are having n number of charges in the system, then
it will be the algebraic sum like this: summation I is equal to 1 to n qi upon ri. So if we are having the continuous charge distribution, then this summation will be replaced by integration. This is to be noted. अगर हमको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम इस समेशन की जगह क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन को यूज करेंगे। यहां तक तो हमने पढ़ लिया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस हमको मालूम करना था, द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस विल बी लाइक दिस। नाउ फॉर द उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए, बरखी बार के निजाम की वजह से पैदा बरखी ख्वा। देखिए बच्चों, एक बरखी बार का निजाम कैसे तैयार किया है? अगर किसी सिस्टम में, किसी निजाम में Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरह के चार्जेस हैं जो किसी नुक्ता P से एक खास फासले पर है। जैसे पहला चार्ज Q1 इस नुक्ते से R1 फासले पर है, दूसरे चार्ज इस नुक्ता P से R2 फासले पर है, तीसरा चार्ज नुक्ता P से R3 फासले पर है। इस तरह हम कंटिन्यूअसली n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। बरखी बार की तादाद अगर n हो तो इस तरह, और R4, R5, R6 रेस्पेक्टिवली एक के बाद दीगरे उनका इसी तरह डिस्टेंस है, तो हम उस सिस्टम को कैसे लिख सकते हैं, उसका पोटेंशियल कैसे मालूम कर सकते हैं? उस सिस्टम में पॉइंट P पर नुक्ता Q1 की वजह से बरखी ख्वा के लिए मसावत कैसी होगी? V1 मसावी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1। ये इस Q1 की वजह से नुक्ता P पर ख्वा के लिए मसावत होगी। उसी तरह नुक्ता Q2 की वजह से इस नुक्ता पॉइंट P पर जो कि R2 डिस्टेंस पर है, पोटेंशियल या ख्वा के लिए मसावत क्या होगी? V2 मसावी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2। सिमिलरली तीसरा जो चार्ज है Q3, इसकी वजह से इस पॉइंट P पर जो ख्वा है पोटेंशियल, उसकी मसावत क्या होगी? V3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बटे R3 इस तरह होगी। और ऐसे n चार्जेस हो सिस्टम में, राइट, तो फिर Vn मतलब Qn इस चार्ज की वजह से पैदा ख्वा Vn मसावी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बटे Rn, ऐसा होगा। यहां तक तो हम आ गए। अब यहां पर अगर हमको कुल पोटेंशियल मालूम करना है, नुक्ता P पर मौजूद टोटल कुल ख्वा के लिए मसावत अगर हासिल करना है, तो हम क्या करेंगे? V मसावी है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इस उसूल का इस्तेमाल करें। उसूल क्या? इंतबाक के, बरखी बारों के इंतबाक के उसूल का यहां इस्तेमाल करेंगे। V मसावी है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। इस तरह इस नुक्ता P पर तमाम बरखी बार की वजह से पैदा ख्वा के लिए मसावत को हम क्या करते हैं? इनका अलजेब्रिक सम करते हैं। तो अब V1, V2, V3 में आप देख रहे हैं कि कौन सी चीज कॉमन है, मुश्तरिक है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मुश्तरिक है हर जगह, तो फिर उसको बाहर ले लिया ब्रैकेट के, और फिर ये Q1 बटे R1। यहां पर देखिए, ये यहां पर Q1 बटे R1, Q2 बटे R2, Q3 बटे R3, और इस तरह Qn बटे Rn, इस तरह लेना है। और फिर अब हमने कॉमन जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बाहर निकाल के ब्रैकेट में जो कुछ है वो लिख दिया। अब इसको कंक्लूड करते हैं कि ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक सम है, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n। अगर I की, इंटीजर I की कीमत 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा हम ले, जैसे मैंने यहां लिखा है,
तो फिर हम उसको लिख सकते हैं समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n क्यू आई अपॉन आर आई। इस मसावात को ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये बच्चों ये है दिस बरखी बार के निजाम की वजह से पैदा बरखी ख्वा के लिए मसावात। ये था सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसकी वजह से किसी नुक्ते पर पैदा बरखी ख्वा के लिए मसावात, ये हमने मालूम किए हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बोर्ड की किताब को मद्देनजर रखते हुए हर आर्टिकल को आप अपनी बयास में तहरीर कीजिए और उसको पीडीएफ के फॉर्म में मेरे व्हाट्सएप पर आप सेंड कीजिए। तो एज ए होमवर्क मैं आपको ये काम दे रहा हूं ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो, ये आर्टिकल आपकी नजर से जाए। देखो बच्चों, अब हम इस पर एक प्रॉब्लम करेंगे। ये प्रॉब्लम पहले तो मैं कल का जो आर्टिकल लिया था उस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था अपना, इसलिए कल के आर्टिकल पर एक प्रॉब्लम लूंगा पहले, उसके बाद आज के आर्टिकल पर प्रॉब्लम लेंगे। तो क्या प्रॉब्लम के लिए मैंने इधर दूसरा स्पेस, प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, देखिए पहले इसको मैं यहां पर तहरीर कर देता हूं प्रॉब्लम को। और शॉर्ट इलेक्ट्रिकल डाइपोल इज P इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁹। एक शॉर्ट इलेक्ट्रिकल डाइपोल, ओके, और शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल is P is equal to 1 into 10⁻⁹ centimeter. Determine the electric potential due to the dipole. Determine the electric potential due to the dipole at a point distance 0.3 meter, at a point of distance or distant 0.3 meter from the center of the dipole, from the center of the dipole situated अलग अलग सिचुएशन पे बताया गया है। एक ही पॉइंट है जो कि 0.3 मीटर के फासले पर होगा डायपोल से, लेकिन अलग अलग उसकी लोकेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल एट एन एक्सियल लाइन, पहला है एट एन एक्सियल लाइन, बी at an equator, on the equatorial line, on the equatorial line. C on a line making an angle, on a line making an angle 60 degree, making an angle 60 degree with axis, so देखिए बच्चों, ये आपका प्रॉब्लम है। अब इसके सॉल्यूशन को ट्राई करेंगे। पहले तो आप ये देख लीजिए कि प्रॉब्लम है क्या। A short electric dipole whose dipole moment is P is equal to 1 into 10⁻⁹
मतलब ये हुआ डायपोल का मतलब होता है दो कुतबी। इसने जैसा कि अभी बताया था मैंने कल के घंटे में आपको कि एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है इस तरह, और उसने बताया कि इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P क्या रहता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। मतलब ये डिस्टेंस तो 2L है, L और L, और एक कुतुब की ताकत द स्ट्रेंथ ऑफ वन पोल Q इंटू 2L, दैट इज द लेंथ ऑफ दैट डायपोल 2L। इट इज गिवन, ये दिया हुआ है अपने को, वो कितना है, P की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁹ सेंटीमीटर एक डायपोल है। इससे किसी नुक्ते पर क्या बोलता है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हवा के लिए मसावात हासिल करना है या हवा की वैल्यू मालूम करना है, ड्यू टू द डायपोल, इस डायपोल की वजह से, एट पॉइंट डिस्टेंस 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। ये डायपोल का समझो सेंटर है, इससे 0.3 मीटर फासले पर एक नुक्ता है। कहां कहां है वो सिचुएटेड, एट एन एक्सियल लाइन। ठीक है, ये लाइन जो है ये एक्सियल लाइन है, इससे 3.3 मीटर फासले पर कहीं यहां पर एक्सिस पर, एक्सियल लाइन पर, एट एन एक्सियल लाइन 0.3 मीटर पर आपको मालूम करना है पोटेंशियल। अनदर थिंग इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, मैंने आपको बताया था जैसे कि ये इक्वेटर मतलब द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर of the dipole and it is perpendicular, therefore it is called as equator। इक्वेटोरियल लाइन पर 0.3 मीटर पर ये सिचुएटेड है, वहां का पोटेंशियल क्या होगा, 0.3 मीटर पर इधर है, यहां का पोटेंशियल क्या होगा। थर्ड, सी ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ, मीन्स ये यहां से इंक्लाइन है, सपोज ये सेंटर से इस तरह 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये इंक्लाइन है एक्सिस से 60 डिग्री, इस नुक्ते पर 0.3 मीटर पर एक पॉइंट है, वहां का पोटेंशियल मालूम कीजिए। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट ए पॉइंट 0.3 meter on the axis, 0.3 meter on the equator, or at the 0.3 meter on the line which is inclined by 60 degree। तो इस तरह ये पॉइंट यहां, तो ये असल आपका प्रॉब्लम है। अब इसके सॉल्यूशन को क्या करेंगे बच्चों, हम इक्वेटर दोनों तीनों के लिए पोटेंशियल की जो एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे, और यहां पर दिया हुआ है आर की वैल्यू 0.3 मीटर, ये तो प्रॉब्लम में इटसेल्फ दी हुई है। ये एक चीज दी हुई है P, दैट इज द डायपोल, दैट इज वो है बरखी दो खुतबी का मियार असर P, उसकी वैल्यू दी हुई है। दूसरा R की वैल्यू दी हुई है 0.3 मीटर। सो द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल इज ऑन द एक्सिस, पहला पॉइंट ले लेंगे A, एक्सिस पर कोई पॉइंट है 0.3 मीटर, इस पर पोटेंशियल के लिए हम एक्सप्रेशन मालूम कर रहे हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगी, V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P, दिस P अपॉन R स्क्वायर। यस्टरडे वी हैव सीन, कल हमने जो देखा था कि पोटेंशियल के लिए लास्ट इक्वेशन जो हमारी आई थी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सिस पर पोटेंशियल क्या होगा। तो बच्चों अब P की वैल्यू तो अपने को दी हुई है, इसकी वैल्यू भी आपको मालूम रहती है। ये 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 9 इंटू 10⁹, ये लिख दिया मैंने। और P की वैल्यू यहां पर अपने को दी हुई है, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁹, then R square means 0.3 its square। अब बच्चों 0.3 its square means that is 9 इंटू 10⁻²। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 9 इंटू 10⁻²।
तो 0.09 होता है उसका, तो 9 इंटू 10⁻², ये ऊपर जाके हो जाएगा +2। अब हम कट करेंगे इसको, जैसे ये 10⁻⁻9, ये +9 कट हो गया, और ये 9 और ये 9 कट हो जाएगा। अब ये -2 है तो ऊपर जाके क्या होगा, 10⁻+2 हो जाएगा। 10⁻+2 मतलब 100, और पोटेंशियल जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, दैट इज वोल्ट्स। सो इस तरह हमने पहले चीज को मालूम कर लिया है। वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ this particular thing, that is at an axial line what will be the potential। यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, 0.3 मीटर फासले पर कोई पॉइंट है, इस पर पोटेंशियल क्या होगा अगर कोई एक्सिस पर है। तो उसको क्या लिखा, v इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन r², और v इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू रखा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू अभी जो दिया हुआ था उसकी वैल्यू को रख दिया है, और r इज द डिस्टेंस, 9 इंटू 10⁻⁻2 क्यों लिखा मैंने, 0.3 मीटर है तो इसको हमने स्क्वायर करके लिखा है। इस तरह ये वैल्यू आती है 100 वोल्ट। अगर आपने ये नोट कर लिए हैं तो हम इसके दूसरे पॉइंट पर चलेंगे। जैसे अब प्रॉब्लम तो आपको मालूम हो चुका है, तो अब मैं इसको मेटता हूं यहां पर। अब फिगर के जरिए ही अपन इसको देखेंगे। और क्या मालूम करना था आपको, सेकंड पॉइंट बी ये मालूम करना था, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। बच्चों यू हैव टू नोट इट दैट पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन विल बी v इज इक्वल टू 0। बी क्या है, पोटेंशियल एट द पॉइंट on the equatorial line will be v is equal to 0। मतलब जो दूसरा अपना प्रॉब्लम था b ऑन द इक्वेटर, ये इक्वेटर पर कोई नुक्ता 0.3 मीटर पर हो तो वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, उसका सॉल्यूशन v is equal to 0। थर्ड थिंग, तीसरी चीज यहां पर पूछा है, ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। तो देखिए बच्चों, उसके लिए मैं यहां पर एक्सप्रेशन लिख रहा हूं कि जैसे उसने पूछा है कि ये एक लाइन है जो कि ये एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। इस पर 0.3 मीटर पर अगर कोई पॉइंट है, यहां से सेंटर से 0.3 मीटर पर कोई पॉइंट है, तो वहां पर पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन तो अपने को मालूम है, v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, अब यहां पर बात आती है इंक्लाइन बाय 60 डिग्री। तो हमने कल देखा था कि अगर कोई इंक्लाइंड है तो उसको क्या लिखते हैं अपन, p cos थीटा अपॉन r²। तो फिर ट्राई कीजिए, इसकी वैल्यू को रखिए 1/4πε0, ये होता है 9 इंटू 10⁻⁹, और ये p ये तो दिया हुआ है अपने को 1 इंटू 10⁻⁻9 ये दिया हुआ है, और उसके बाद cos 60 की वैल्यू बच्चों होती है 1/2। लॉग टेबल में आप देख लीजिए, या उस ज्योमेट्री को मद्देनजर रखते हुए अगर हम cos 60 की वैल्यू देखेंगे तो 1/2 है। तो फिर डिवाइडेड बाय ये r² मतलब फिर 0.3, r तो डिस्टेंस कितना है 0.3 है, इट्स स्क्वायर, ये कितना होता है 0.3 इट्स स्क्वायर, दैट इज 9 इंटू 10⁻²। तो इसको डिडक्ट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 कैंसल्ड विथ 9, दिस 10⁻⁻9 कैंसल्स विथ +9। अब ये बच्चों 10⁻² है, ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻+2, +2 मतलब 100, और ये डिवाइडेड बाय 2 मतलब ये क्या आ गया 50 वोल्ट। इस तरह अगर कोई पॉइंट यहां पर है, मतलब एक एक्सिस से एक लाइन 60 डिग्री का एंगल अगर बना रही है, तो उस पर कोई पॉइंट है जो 0.3 मीटर डिस्टेंस पर है, तो वहां का पोटेंशियल कितना होगा 50 वोल्ट होगा। कैसे,
V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into P cos theta by R square is the equation for potential on the line which is inclined by some degree, and we can write here P cos theta by R square. उसी तरह उसकी वैल्यू को रखा 1 by 4 pi epsilon naught क्या होता है 9 into 10 to 9. P की वैल्यू को यहां से रखा जो दी हुई थी 1 into 10 to minus 9. cos थीटा की वैल्यू को रखा 1 by 2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मतलब 0.3 स्क्वायर मतलब 0.09 मतलब 9 into 10 to minus 2. ये -2 को ऊपर ले गया तो +2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50 वोल्ट. तो इस तरह बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए. आज हमने इस पर भी एक प्रॉब्लम देखा है, मतलब एटलीस्ट एक कंसेप्ट को हमने समझा है और उस पर एक प्रॉब्लम को भी समझा है. जैसा नीट बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स ही होते हैं जो नीट के क्वेश्चंस बन जाते हैं बाद में. 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको. असल चीज होती है कि ये कंसेप्ट को आपको समझना पड़ता है. जैसे आज हम क्या कंसेप्ट पढ़ रहे थे, आज हम सिस्टम ऑफ चार्जेस को पढ़ रहे थे, उस पर भी हम एक प्रॉब्लम को नोट करेंगे. आप एक प्रॉब्लम लिख लीजिए, इट इज जस्ट होमवर्क फॉर यू, और उसके बाद आप अगर सॉल्व करके भेज देते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, और अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हम उसको नेक्स्ट पीरियड में कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे. सो देखिए क्वेश्चन क्या है. 2 चार्जेस, देखिए मैं यहां पर होमवर्क देता हूं अब आपको. ये प्रॉब्लम है जो सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब आज के आर्टिकल पर बेस्ड है. 2 चार्जेस 5 into 10 to minus 8 coulomb, 5 into 10 to minus 8 coulomb, and minus 3 into 10 to minus 8, minus 3 into 10 to minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. Are located 16 centimeter apart. At what point A on the line joining the 2 charges, okay, on the line joining the 2 charges is the electric potential 0. Is the electric potential 0. देखो बच्चों पूछता है कि 2 चार्जेस है, एक चार्ज इधर है एक चार्ज, इस चार्ज की वैल्यू है 5 into 10 to minus 8 कूलम, दूसरे की है -3 into 10 to minus 8 कूलम, और ये लाइन जो इसको ज्वाइन कर रही है ये दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर. ये 16 सेंटीमीटर दोनों एक दूसरे से दूर है. एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पर कौन सा नुक्ता है ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0. आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है इस लाइन पर जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है. तो इस तरह का आपका प्रॉब्लम है. ये आपका होमवर्क है. ओके, यू टेक डाउन द होमवर्क. इज इट क्लियर टू यू? शायद दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं पढ़ रहा हूं, आप इसको नोट कीजिए. 2 चार्जेस
5 into 10⁻⁸ coulomb and -3 into 10⁻⁸ coulomb are located on the line joining the two charges, located 16 सेंटीमीटर apart. दोनों एक दूसरे से कितना है? 16 सेंटीमीटर. At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? और कंसेप्ट बहुत क्लियर. यहां पर देखिए मैंने एक ड्रॉ किया. एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है. 5 into 10⁻⁸ coulomb -3 into 10⁻⁸ coulomb. They are separated by a distance 16 सेंटीमीटर. तो इस लाइन पर कौन सा नुक्ता होगा जहां का पोटेंशियल जीरो होगा? ये क्वेश्चन है. उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हाथ ऊपर कीजिए. आप हैं इसमें शामिल? इशरत जहां, ओके. तो देखिए, दो बरखी बार 5 × 10 की क़ुव्वत -8 कूलम और -3 × 10 की क़ुव्वत -8 कूलम एक दूसरे से 16 सम फासले पर मौजूद हैं. उनके महवर पर वो नुक्ता मालूम कीजिए, दरियाफ्त कीजिए जहां का खवा बरखी ख्वा जीरो होगा. यह आपका क्वेश्चन है. ओके बच्चों, इस तरह हमने आज का जो आर्टिकल था वो सिस्टम ऑफ चार्जेस पर था, जैसे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. ये था आर्टिकल. इसको पहले हमने समझ के लिए और उस पर फिर एक कल का जो आर्टिकल था उस पर हमने एक प्रॉब्लम किया और आज के आर्टिकल पर यह प्रॉब्लम है. ये मैं आपको थोड़ा सा वक्फा देकर देखना चाह रहा हूं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर. होमवर्क भी तो कुछ चाहिए आपको, इसलिए ये देखना चाह रहा हूं मैं कि आप किस तरह इसको हल कर पाते हैं. और मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कीजिए इसको. देन अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है, कल हम इसी से शुरुआत करेंगे और उसको हल करने के बाद फिर दूसरा आर्टिकल को लेंगे. देखिए, जहां तक आज का आर्टिकल था बच्चों, आई एम रिपीटिंग दैट कि अभी मेरे पास 5 मिनट वक्त है, इसलिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, मैंने फिगर को ऑफ कर दिया था. सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब होता है पॉइंट यहां पर है P, इसके अतराफ में नंबर ऑफ चार्जेस. सपोज ये चार्ज है Q1, इट इज सिचुएटेड एट R1.